हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्लास 9 CBSE NCERT social science here, a part of economics. The next question arrive here that's important. How can poverty be reduced in a future in India? You know that is important question here. How can poverty reduce in a future in India? That's important. Poverty can be reduced in the following way here. First of all, here promoting to inclusive economic growth here. That's important point here. Promoting the inclusive economic growth. Encouraging of entrepreneurship and the small scale industry can create employment opportunities. You know that is important. Small scale industries here. There is a promote for there is employment of opportunity and leading to the income generation and poverty reduction here. And focusing a sector with their high growth potential such as a manufacturing, service and technology can help create a more job opportunity. That's important here. First point, reducing the future of India here on poverty. The promoting the inclusive of economic growth here. That's important, and here small scale industries create here. The next year, investing in education and skill development. That's important point here. Enhance this has to be a quality of education for all, especially in a rural area. Can empower individual to break the cycle of poverty. Like they are emphasizing a skill development program and vocational training can equip individual with the necessary skill for a better employment perspective. That important here, investing in educational and skill development. That's important point. And strengthening is a social safety net here. Strengthening is their social safety net. Expanding a social welfare program such as a direct cash transfer, subsidies, food, and the healthcare can be provided to the safety net for the most vulnerable section of society. That's important here. Directly cash transfer, subsidized food, and the healthcare is important here. And ensuring the efficient implementations and targeting of these programs to be reach those in need to the crucial for their effectiveness here. That's important point here. The next point here, improving agriculture productivity here. That is important. Improving to agriculture productivity. Enhancing agriculture productivity is through the model farming techniques, irrigation facilities, and access to create can uplift rural communities and heavily depended on agriculture. And agriculture promoting to diversification into high value crops and providing market infrastructure can help to the farmer earn higher incomes. That's important here, improving to the agriculture productivity here. And the next year, enhancing there is a healthcare and sanitation. Enhancing there is a healthcare and sanitation. Investing in a public healthcare infrastructure, especially in a rural area, can reduce the burden of healthcare expensive on the low income household here. The promoting awareness and implementations of proper sanitation and practice can improve public health outcomes and reduce the healthcare cost. That's important point here. Empowering the woman, that's important factor here. Empowering of women, ensuring the gender equality and women as a empowerment are crucial for a poverty reduction. Providing to equal access to education, healthcare, and employment opportunity for women can lead to their economic independence, contributing to the overall poverty education. That's important point here, empowering to the women. And the last point here, addressing regional disparities here and the focusing on regions with high poverty rates such as
a remote rural area and a marginalized to the communities can help reduce original disparities and targeted to development programs, infrastructure investment and job creation activities can uplift this regional and improve living standard. That's important point here. 7 point is the most important. Note your notebook. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, निर्धनता एक चुनौती, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 9वीं सामाजिक विज्ञान यहाँ पर एनसीईआरटी सीबीएसई के अंतर्गत जो हमारा यहाँ इकोनॉमिक्स के आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है भविष्य में गरीबी कैसे कम की जा सकती है। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में भविष्य में गरीबी कैसे कम की जा सकती है। देखा जाए तो कुछ कदमें उठा के हम भारत में गरीबी को कम कर सकते हैं और कुछ बातों को एनालाइज करके कुछ फ्यूचर को बना के हम जो है आगे भविष्य में चल सकते हैं। कहते हैं पहला अगर पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कहते हैं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। देखा जाए तो उद्यमशीलता और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आय सृजन और गरीबी में कमी आएगी। आपको पता ही होगा कि अगर एक उद्योग खोलते हैं हम, बड़े इंडस्ट्री जैसे सरकार आज के समय प्रोत्साहित कर रही है, बड़े बड़े उद्योगों को भारत में ला रही है, तो उसे 100 व्यक्तियों को जॉब मिलेगा। लेकिन अगर लघु उद्योग स्थापित किया जाए, छोटे छोटे उद्योग जो है आम लोगों द्वारा स्थापित किया जाए, तो कहते हैं इससे कई लोग जो होंगे इसी काम में कार्यरत होंगे। पुराने समय में देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या इसलिए नहीं आती थी क्योंकि वो माता पिता के जगह पर जो है स्वयं बच्चे बैठ जाते थे काम करने के लिए, इसलिए रोजगार के अवसर मिल जाता था। लेकिन आज के समय जो है आधुनिक युग में बच्चे जो है अपने जॉब बदल रहे हैं और लघु उद्योग तो ख़त्म ही हो गई है, जिनके कारण आए दिन जो है गरीबी की जो है सृजन होती चली जा रही है। देखा जाए तो विनिर्माण सेवाएं औद्योगिक जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की तरफ हम नज़र डालें तो कहते हैं शिक्षा और कौशल विकास में निवेश। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के स्तर पे हमें विकास करने की आवश्यकता है। कहते हैं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच बढ़ाना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से तोड़ने के लिए सशक्त बना सकता है। कहते हैं दोस्तों शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। लेकिन मैं कितना बार बता चुका हूँ कि कहते हैं गरीबों के लिए शिक्षा भी उतना ही दूर होता जा रहा है जैसे उनसे रोटी कपड़ा मकान हो रहा है। कहते हैं गरीब लोगों के लिए शिक्षा का स्तर प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो गया है। कुछ माता पिता बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं तो सरकार के जो कार्यात लोग होते हैं वो शिक्षाओं को छीन रहे हैं आज गरीबों से। कहते हैं अगर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं माता पिता कष्ट उठा के, तो वहाँ पर टीचर जो है उनको ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं कटोरा पकड़ा के। तो ये क्या सिस्टम है। कहते हैं आज वहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील के रिगार्डिंग जो है सिर्फ उनको भोजन करा के स्कूल से वहाँ पर जो है रवाना कर देती हैं। शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं देखने को मिलता है। और देखिएगा तो माता पिता के मोबाइल पे सभी जगह जो है टीचर जो है असाइनमेंट भेज देते हैं, क्वेश्चन आंसर भेज देते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ नहीं करते कि बच्चे को जो है कुछ शिक्षा दिया जाए, कुछ पढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ी जो है हमारे देश में शिक्षा की कुशलता के विकास में निवेश काफ़ी महत्व रखता है और सरकार को इसकी नीतियों को बदलने में भी ज़रूरी है। कहते हैं जब तक ये कुछ चक्र नहीं टूटेगी शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा नहीं हो पाएगा और भारत सशक्त नहीं हो पाएगा। मैं जितना मर्जी बोल लूँ मुझे पता है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे देखें कौशल विकास कार्यक्रमों और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने से व्यक्तियों को बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए अवसर कौशल से लैस किया जा सकता है। अब देखिए इस पर भी सरकार ने 2 लाठी चला दिया है। जितने भी वोकेशनल कोर्स थे सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके कारण देखिए वोकेशनल कोर्स ये होता है करने से कि बच्चे जो हैं जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो उन क्षेत्र के जो है काम पहले ही सीख लेते हैं, जिससे उनको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का काम उनको पता होती है, तो वो बहुत ही आसानी से अपने कामों में समावेश कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर भी लाठी
मारी है। ऐसे बहुत से कोर्स हैं जो वोकेशनल कोर्स था उसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो इससे जो है रोजगार की संभावनाओं के लिए आवश्यक कौशल लैस किया जा सकता था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो अगला पॉइंट जो बताता है सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते सीधे नगद हस्तांतरण, सब्सिडी वाले भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। कहते हैं ज़रूरतमंदों लोगों पर पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का कुशल कार्यान्वयन और जो है लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना उनकी प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए दोस्तों तो सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना एक देश को मजबूत करने के बराबर है, क्योंकि आज अगर माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो उनको डर होता है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं है। कहते हैं आज भी पुलिस तब पहुंचती है जब सारी घटना हो जाती है। कहते हैं जब पुलिस स्टेशन में भी कोई रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो आपको चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ जाता है और जिसके साथ बुरा हो रखा होता है उसी को ही मार और उसी को डंडा खाना पड़ता है। तो सामाजिक सुरक्षा का जाल मजबूत करना सरकार के लिए सबसे प्राथमिक कदम होना चाहिए। उसके पश्चात अगर देश में हम भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं कृषि उत्पादकता में सुधार करना। आधुनिक कृषि तकनीकी सिंचाई सुविधाओं और ऋण तक पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादन वृद्धि से कृषि पर अत्यधिक निर्भर ग्रामीण समुदाय का उत्थान हो सकता है। अगर देखा जाए तो अगर कृषि के हम उत्पादन क्षमता में और वृद्धि कर लें और कृषि के क्षेत्रों की ज़मीन को नष्ट न करें तो शायद भारत जो है उन सभी तकलीफ़ों से निकल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव कभी होगा, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है लगता नहीं कि भविष्य में इन सब चीज़ों पर जो है सुधार किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं जो चीज़ बिगड़ता है वो बिगड़ता ही चला जाता है, उसको सही करना संभव नहीं रहता है। और संभव भी कैसे किया जा सकता है जब हमारे देश में राजनीतिक नेता सभी जो है अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, तो देश को कौन देखेगा। कहते हैं उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण को बढ़ावा देने और जो है बाजार का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने से किसानों को उच्च आय अर्जित करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ाना। कहते हैं स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बुनियादी ढांचों में निवेश विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कम आय वाले परिवार पर जो है स्वास्थ्य देखभाल खर्च के बोझ को कम कर सकता है। जागरूकता को बढ़ावा देने और उचित स्वास्थ्य प्रथाओं को कार्यान्वयन से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार भी किया जा सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम भी हो सकती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं को सशक्तिकरण करना, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना। कहते हैं अगर आप एक महिला को पढ़ा दो तो आने वाले हर एक जनरेशन पढ़ा लिखा ही मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कहते हैं गरीब कम करने के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत जितना मर्जी तरक्की कर ले लेकिन यहाँ पर लैंगिक असमानताएं जो हैं आज अपनी चरम सीमा पे है। आज पढ़े लिखे लोग भी लैंगिक असमानताओं में विश्वास रखते हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर तक सामान्य पहुंच प्रदान करने की उनकी आर्थिक स्वतंत्रता हो सकती है, जिससे समग्र गरीब में कमी आएगी। कहते हैं महिलाओं को अगर हम शिक्षित कर देते हैं, महिलाओं को सशक्त बना देते हैं तो आधे से अधिक समस्याएं जो हमारा है बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ होता है कि कई पुश्तों तक जो है सशक्त बनाया जा सकता है। उसके पश्चात आता है क्षेत्रीय असमानताओं को संबंधित करना। कहते हैं उच्च गरीबी दर वाले क्षेत्रों जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और हाशिए पर रहने वाले समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने में से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। लक्षित विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार की सृजन पहल इन क्षेत्रों का उत्थान कर सकता है और जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है महिलाओं को सशक्त करने की बात। तो महिलाओं को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे भारत जो है अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुँचेगी। क्योंकि महिलाओं को शिक्षा करने का मतलब होता है अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देना। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन द 3 ways in which the poverty can be estimated in India. You know that is important here.
explain the poverty can be studied in India. That's important. Here, three-way asking here question. Will determine their poverty line in India a minimum level of the food requirement, clothing, footwear, fuel and the light, and educational and medical equipment, etc. are determined for the substance. You know that's important. There is a poverty lines in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and the light, and the education and the medical equipment. That's important here. You know that there is a three-way is poverty can be estimated in India here. First of all, here the calories requirement depending upon to the age, sex, area, and types of work in the way of the estimating poverty. Know that is important. There is the calorie requirement depending upon the age, sex, area and types of work in the way estimating of poverty. You know that second year average calorie requirement in India 2400 per person or per day. That's important. 2400 per person per day in a rural area and 2100 per person or per day in the urban area. That's important here. 2100 per person day in the urban area. Why? This is different here. You know that that's important because the rural area people there is a hard working. There is a minimum calories is a need here. Is a 2400 per person. But urban area is a low work. There is a not about the hard working. There is a minimum here. Average is a 2100 per person or per day urban area. That's important reason here. The next year, monetary expenditure per capital need is also a way of estimate of poverty. You know that is important. Monetary expenditure per capital needed is also a way of estimating poverty here. In the year 2000, poverty line for a person was fixed as a rupees 328 per month for the rural area and 450 for the urban area. That's important here. You know that there's an urban area here or 454 because the city life here. But there is a rural area is here a poverty line of 328 per month for the rural area. That's important here. In 2000, here poverty line is declared the Indian government. That's important. 328 only the rural area and 454 to urban area. Monthly income. That's not a fair. A uniform standard for poverty line is also used, which is given by the international organization like a World Bank. World Bank asking here the poverty line, this equivalent of $1 per person or per day. There is a World Bank has defined his poverty line. The World Bank defined the poverty line here per person per day $1 requirement. That's important here for the exam view. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं सामाजिक विज्ञान और ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के 3 तरीके बताइए। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के तरीके हमें बताना है कि भारत में हम गरीबी का अनुमान कैसे लगाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम व्यू से। और आपको तो पता ही होगा कि जर्नल सी बात है कि हर एक इंसान की 3 ही मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। कहते हैं जिनको ये सब मिल गया वो पॉवर्टी लाइन में नहीं देखे जा सकते। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये अनुमान लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन
रोशनी, शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तो चलिए एक साइंटिफिक रीजंस है। यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन के अंतर्गत यहाँ दिखाया गया है कि भोजन की आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और रोशनी और शैक्षिक, चिकित्सा आवश्यकता आदि न्यूनतम स्तर पर इसमें निर्धारित की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के तरीकों का है यहाँ पर हम चर्चा करने हैं, तो हमारा यहाँ कुछ पॉइंट है जिसके अंतर्गत आप इसको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। देखा जाए तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए हम उम्र, लिंग, क्षेत्र और काम के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता गरीबी का अनुमान लगाने के तरीका होता है। हमने ये निर्धारित किया है कि उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और क्षेत्र और काम के हिसाब से कितने व्यक्तियों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होता है, तो उससे हम गरीबी का अनुमान लगाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो है कैलोरी दिन में पर डे हिसाब से जो है ढंग से नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो जनरल सी बात है वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होगा। अगर आप स्वयं भी नहीं खाते हो तो वो भी आप गरीब ही हो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जितना कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है वो लेना ही जो है इम्पोर्टेंट होता है। और ये कैलोरी निर्धारित हम कर सकते हैं। यहाँ पर भारत में औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और यही शहरी क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर 2100 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब यहाँ पर समझ में आपको ये नहीं आ रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक और शहरी क्षेत्र में कम क्यों। तो इसका साफ आंसर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो मेहनती काम अधिक करते हैं, क्योंकि उनका कोई भी काम होता है मेहनत से भरा पड़ा होता है, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता मानी जाती है। और भारत में औसत कैलोरी की जो है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 है, और ये कई बार MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और शहरी क्षेत्र में कम इसलिए है क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग जो है घर में सोते हैं और घर से उठते हैं और गाड़ियों में ही जाते हैं। इनका जीवन भागम भाग तो रहता है लेकिन सब मशीनों के अंतर्गत होता है, तो इनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी जो है निर्धारित की गई है, और भी प्रति व्यक्ति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 प्रति व्यक्ति कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है, और वही शहरी क्षेत्र में 2100 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये MCQ के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखें तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के एक और भी तरीका है कि प्रति व्यक्ति आवश्यक मौद्रिक व्यय भी गरीबी का अनुमान लगाने का तरीका है। यानी प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय कि कितना पैसा हम व्यय करते हैं, तो ये भी एक अनुमान लगाने का सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका है। आगे देखते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। आगे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कहते हैं वर्ष 2000 में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 328 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 454 रुपये प्रति माह तय की गई थी। अब देखिए ये अनुमान लगाने का सबसे बेस्ट तरीका था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति गरीबी रेखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई थी कि 328 रुपये, जो व्यक्ति ग्राम में रह के 328 रुपया कमा रहा है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, लेकिन 328 या कहते 329-30 तक पहुंच जाता है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आकलन की जाएगी। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर 328 रुपये की क्या कीमत होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कुल जनसंख्या के अंतर्गत निकाली गई है, इसलिए आपको 328 रुपया यहाँ पर बहुत ही कम दिख रहा होगा। क्योंकि देखिए भारत की जनसंख्या होती है देखिए इसका आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके घर में 5 व्यक्ति हैं लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है, तो ये जो कमाने वाला व्यक्ति है उसका इनकम जो है 5 भागों से डिवाइड होगा। यानी जितना कमाता है वो सारे पैसे रखिए और उसको 5 से डिवाइड कीजिए, और जो भी पैसा आता है वो प्रति व्यक्ति आय होगा। क्योंकि जो नहीं कमा रहे होते उनका भी आकलन की जाती है। और इसका जो सरकार ने 328 रुपया जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित की गई है, तो ग्राम में जितने व्यक्ति रहते हैं उनको ग्राम में जितने पैसे हैं उनको डिवाइड करके जो है 328 रुपया यहाँ निकला है। तो ये है कि 328 रुपया प्रति व्यक्ति
प्रति माह तय की गई है। और वही शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो इसकी आकलन थोड़ी अधिक है, यहाँ 454 रुपये प्रति माह के तय की गई है। ये सब देखना और समझना बड़ा ही आसान है, लेकिन यह कन्फ्यूज़न भी रहती है। आप सोचते हो कि 454 रुपया कौन कमाता होगा आज के समय में महीने का, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े एक व्यक्ति से नहीं निकाली जाती है, सरकारी आंकड़े पूरी जनसंख्या के साथ निकाली जाती है, तब जाके ये आता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि ये 328 रुपया क्यों बताया गया है। 328 रुपया जो है पूरी जनसंख्या से जो है डिवाइड करके ग्रामीण क्षेत्र के निकाले गए हैं, और पूरे शहरी क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उनके जितने पैसे होते हैं जो सरकार को दिखता हो। और ये पैसे दोस्तों वो होते हैं जो सरकार को दिखते हैं, ये नहीं कि आप जो घर में रखे रहते हो पैसे, उसका कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होता है। तभी सरकार कहता है घरों में मत पैसे रखिए, तभी तो आए दिन जो है मंत्रियों पर देखते ही रहते हो छापे लगते रहते हैं कि ये लोग जो है पैसों को दबा लेते हैं, घरों में पेटियों में बंद कर देते हैं, जिनके कारण हम इसकी सही आंकड़ा हम नहीं लगा पाते हैं, पैसे एक दो जगह ही सिमट के रह जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय होगा या पर गरीबी रेखा होगा, सब इन्हीं पैसों से निर्धारित होती है जो बैंकों में या सरकार के नज़र में होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ समझ गए होंगे। अगर हम अगली और अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि गरीबी रेखा के लिए एक सामान्य मानक के भी प्रयोग किया जाता है जो विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया गया था, और ये था प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1 की बराबर है। यानी देखिए यहाँ पर विश्व बैंक ने हमें गरीबी रेखा के लिए एक सामान्य मानक दिया था कि जो व्यक्ति पर डे $1 से कम रुपया कमाते हैं वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, और जो व्यक्ति $1 से अधिक कमाते हैं या $1 कमाते हैं वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा। अब यहाँ पर ये भी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ $1 तो देखा जाए तो 64 या 65 या 70 रुपया तक हो सकता है। तो एक दिन में अगर बंदा 64 रुपया कमाता है तो उसको अपना जीवन यापन कैसे होगा। तो इस बात को आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है, तो एक जो है एक दिन में अगर 500 रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 100 रुपया आ गया। तो एक यानी पर डे एक व्यक्ति का जो है 100 रुपया हुआ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 रुपया भी नहीं कमा रहा हो, कम कमा रहा हो, तो यहाँ पर 64 रुपया जो है एवरेज लिया गया है, क्योंकि हम पूरी नहीं देखते हैं। कोई बंदा एक दिन में लाखों रुपया कमाते हैं, कोई 500 भी नहीं होते, कोई 300 भी कमाते हैं। तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो यहाँ बताया गया है प्रति व्यक्ति $1 के बराबर माना गया था, जो ये अंतर्राष्ट्रीय हमें जो है विश्व बैंक ने दिया था। विश्व बैंक ने साफ शब्दों में बताया था कि जो व्यक्ति पर डे $1 से कम कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे, और जो $1 के बराबर कमाएंगे वो गरीबी रेखा के ऊपर होंगी। तो जर्नल सी बात है, और ये जो है लोग घर में जितने सदस्यों की संख्या है उससे डिवाइड करके ये निकाली गई है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट इज इम्पोर्टेंट। गिव अ वेरी अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट disparities of poverty in India. You know that is important. Very account of interstate disparities of poverty in India. You know that is important. Proportion of the poor people is not the same in every state. The poor people is not the same in every state. Reasons first of all here, in 20 states and union territories, the poverty ratio is less than to national average. You know that is important. 20 states and union territories, their poverty ratio is less than national average. That's important here, national average. You know that the state is a number is increasing, but here 20 here, there is a 20 states only is given here. In the states of Odisha, Bihar, Assam, Tripura, Uttar Pradesh, poverty percentage is more than 35%. You know that this is important. There is a main state is here. Average percentage of poverty is here. Odisha, Bihar, Assam, Tripura, Uttar Pradesh. There is an important state. There is not a decrease here, poverty line here. So poverty is a serious problem in the states. In those states,
there is a poverty serious problem in this state. Along with the rural poverties, urban poverty is also high in this state. There's a rural poverties, urban poverty is also is high in this state here. Within the state like Kerala, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, there is a significant decline in poverty. That's important here. There is state like Kerala, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, there is a significant decline in poverty. You know that there is a most important question for the MCQ here. There is a poverty line in India. The state like Punjab and Haryana has succeeded in the reducing poverty with the help of the high agriculture growth rates. You know that's important. The Punjab and Haryana succeed. That is the a poverty line because he was the use. They help the high agriculture growth rate here. That's important. In a West Bengal, land reform measuring have a help in a reducing of poverty. West Bengal is a land reform measuring to help in a reducing poverty here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है. क्लास 9वीं NCERT CBSE के अंतर्गत सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है जिसके अंतर्गत यहाँ पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमारा आया है जो कि अगला है. और अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है कि भारत में गरीबी की अंतर राज्य असमानताएं के संक्षिप्त विवरण देना है. क्वेश्चन साफ है कि भारत में गरीबी का जो अंतर्राज्यीय हमें जो यहाँ पर गरीबी बताना है वो अंतर्राज्यीय असमानताओं को बताना है कि राज्य के अंतर्गत बताना है किस राज्य में कितना है, किस राज्य में कैसा है, किस राज्य में क्या है. तो क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा कि अंतर राज्य असमानताएं. देखा जाए तो हर राज्य में गरीब लोगों का अनुपात एक जैसा नहीं है. किसी क्षेत्र में गरीबी अधिक है, किसी क्षेत्र में है ही नहीं, और किसी क्षेत्र में तो कहते हैं सर से ऊपर बह रही है. तो गरीबी रेखा की यहाँ कमी नहीं है. और कहीं कहीं तो लोग फर्जी कार्ड बना के खुद अमीर होने के पश्चात भी खुद को गरीबी रेखा से नीचे जो है कार्ड बना लेते हैं. इसमें पारदर्शिता नहीं है. मैं एक बात साफ आपको कर दूं कि भारत में जो गरीबी रेखा की आकलन की जा रही है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है. आज अच्छे क्लास लोग भी जो है गरीबी रेखा के नीचे कार्ड बना लेते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है. देखा जाए तो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है. अब देखिए राष्ट्रीय औसत जो दी गई थी उससे भी कम है. 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है. यानी देखा जाए तो 20 राज्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था है और बाकी जो शेष बच गए राज्य हैं उनमें गरीबी रेखा अपनी चरम सीमा पे है. और देखा जाए तो उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों में गरीबी का प्रतिशत 25 से अधिक है. अब देखिए उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में जो गरीबी की प्रतिशत है वो 35 से अधिक है. यानी यहाँ पर गरीबी रेखा अधिक है. अंततः इन राज्यों में गरीबी एक गंभीर समस्या पैदा करती है और इस राज्यों में गरीबी जो कहते हैं ग्रामीण गरीब के साथ साथ शहरी गरीबी भी अधिक है. देखा जाए तो उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्यों में कहते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गंभीर समस्या पैदा कर चुकी है गरीबी रेखा का. और इन क्षेत्रों में गरीबी रेखा की संख्या आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है और ये सरकार के लिए सबसे बड़ा सर दर्द है. अब ये किस कारण से यहाँ बढ़ रही है इस बात को सरकार कभी एनालाइज नहीं करती है. अगर एनालाइज किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाली होगी, लेकिन कोई भी जो है सही रूप से इसका जो है आकलन नहीं करती है. कहते हैं बिहार राज्य के मंत्रियों ने तो ज़रूर वहाँ पर जो है सर्वे करवाई थी, लेकिन वो जाति के अंतर्गत करवाई थी, गरीबी के अंतर्गत नहीं करवाई. और मैं आपको साफ क्लियर बता दूं वास्तविकता में कोई चीज़ आज के समय में होना संभव नहीं है. तभी हमारा आंकड़ा जो होती है गलत रहते हैं हर क्षेत्र में और ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है लापरवाही साबित होती है. देखा जाए तो जबकि केरल,
जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यानी देखा जाए तो केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट, यानी देखा जाए तो यहाँ हद से अधिक जो है गरीबी रेखा में गिरावट आई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम व्यू से भी। आगे देखें तो पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि विकास दर के मदद से गरीबी कम करने में सफल रहे हैं। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में उच्च कृषि विकास दर की मदद से जो है गरीबी कम करने में काफ़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन देखा जाए तो आज पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र जो हैं इनके कृषि क्षेत्र बिल्कुल ही कम होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? शहरीकरण। कहते हैं शहरों के आसपास जितने भी जगह थे, जितने भी कृषि योग्य भूमि थी, सबको सरकार ने जो है बेच के खा गए। तो ये जनरल सी बात है। हम ये बात तो ज़रूर देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा में जो है उच्च कृषि विकास के दर के कारण गरीबी कम करने में सफलता मिली है, लेकिन जनरल सी बात है ये सफलता काफ़ी दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी। कारण क्या है कि जो उपजाऊ भूमि है उनको इन्होंने नष्ट कर दिया है इन क्षेत्रों में। तो ये सरकार की सबसे बड़ी जो है नाकामयाबी ही यहाँ पर साबित होता है। इवन देखें तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से गरीबी कम करने में काफ़ी मदद मिली है। यानी पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार किया गया है और इस कारण से गरीबी कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी ये सिर्फ एक दिखावटी बातें हैं, वास्तविक और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आते हैं। कहते हैं दोस्तों ये सब बातें सिर्फ लोग किताबी बातें रखते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में जाकर देखोगे तो ये ऐसा कुछ भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहते हैं आज देश जो है बेस से बेहतर बनता जा रहा है, बेकार से बेकार जो है लोग बनाते चले जा रहे हैं। आए दिन तरह तरह की समस्याएं हमारे देश को जो है चौंका रही है। तो इन कारण से जो है गरीबी रेखा ख़त्म नहीं हो रही है और फ्यूचर में भी होना नहीं है, क्योंकि गरीबी से तो सरकार की राजनीतिक चलती है। गरीबी ख़त्म हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे तो सरकार की भी गिर जाएगा। इसलिए सरकार कभी भी गरीबी रेखा ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि इनका जो वोट बैंक होता है वो गरीब लोग ही वोट बैंक बनते हैं। तो ये तो सच्चाई है जिसको मैंने बताना अपना फ़र्ज समझा। Next question arrive here that's important. There is what are the main feature of the National Rural Employment Guarantee Act 2005? That's important here. National Rural Employment Guarantee Act 2005. There is a mean to here NREG. NREG 2005 here. The main feature of the National Rural Employment Guarantee Act 2005 are his following here. You know that's important here. The first of all here, the Act assures that 100 days of employment every year to every rural household. That's important feature here. There is 100 days of the employment every year to every rural household here. 1/3 of the job are reserved for a woman. That's important here. 1/3 of the jobs are reserved for a woman. It is also aimed to be sustainable development to address the cases of the drought, deforestation, and soil erosion. That's important here. The main aim at the sustainable development is to address the causes of the drought, deforestation, and soil erosion here. That's important. The share of SC, ST and women are 23% and 70% and 53% is respectively here. You know that's important here. The SC quota is reserved here 23% and ST quota is reserved here 17% and women here 53% respectively here. You know that the rest amount here a general category. There is a rest here general category. That's important here. 30 total SC ST is a 30% here 30-40% and that's important. 40% SC ST quota reserve and 53% is a woman. General category is only 7%.
That is an imagine here. Under this, the average wage has increased from rupees 65 in 2006 to 2007 to rupees 132 in the 2013 to 14. You know that the average wage of this Guarantee Act here, the average wage is here 2006 and 2007 here only 65 rupees, but 2013 to 14 increasing here 132 rupees on this act. The scheme provide to employment to 220 crores per present day of the employment to the 4.78 crore household. That's important here. The scheme provide to employment to 220 crores present day of the employment to the 478 crore household. In March 2018, the wage rate for the unskilled manual workers has been to revise again statewide. That's important. The March 2018, the wage rate for the unskilled manual workers has been to be revised against the statewide here. The range of wage rate for the different state and union territory lies is between rupees 281 per day for the worker in Haryana and the rupees 168 per day from the worker in Bihar and Jharkhand. That is the range of rate of wage on different state and different union territory. That's important here for the exam view. आज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती कक्षा 9वीं CBSE NCERT के अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है बुक। यहाँ सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स के पार्ट है ये। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये पर पर्सन को जो है यहाँ पर जॉब देने की गारंटी एक्ट के अंतर्गत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताओं पे हमने प्रकाश डालनी है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार था। पहली बात तो यहाँ यही आता है कि अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन के रोजगार का आश्वासन देता है। यानी इस गारंटी के अंतर्गत ये अधिनियम के अंतर्गत सरकार जो है ये गारंटी देता है आश्वासन देता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन के रोजगार जरूर दी जाएगी। 100 दिन की रोजगार। और देखा जाए तो इसमें 1/3 नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1/3 करीबन 53% जो नौकरियां इसमें आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य सूखे वनों की कटाई मिट्टी के कटाव के कारण को संबोधित करने के लिए सतत विकास भी था। यानी देखा जाए तो इसमें वन रोपण के अंतर्गत बहुत से काम किए गए थे और सूखे वनों की कटाई मिट्टी कटाव के अंतर्गत सतत विकास के ऊपर इस पर ध्यान दिया गया था। अगर हम इसमें देखें तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमश 23%, 17% और 53% थी। तो आप समझ सकते हो कि इसमें अनुसूचित जाति के लिए यानी ST के लिए था 23% और अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए था 17% की आरक्षण प्रदान की गई थी और महिलाओं की हिस्सेदारी जो थी 53% था। अगर देखिए 23 और 17 को प्लस कीजिएगा तो कितना आता है 40% और 53% जो थी महिलाओं के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना रह गया, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 7% रह गया। अब देखिए क्या हो रहा है, हम आधुनिक युग में है कि हम पिछड़े देशों में गिने जाते हैं। 7% जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए इसमें आरक्षित रखा गया।
क्यों? जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ही अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं। सरकार की नीतियाँ देखा जाए तो हर जगह जो है मुँह खा रही होती है, हर जगह फेल हो रही होती है, क्योंकि इनकी नीतियाँ ही महान हैं। आज देखा जाए तो SC ST कोटा के लोग जो होते हैं सभी जगह अपना दबदबा बना रखे हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं आज या तो फांसी लगा रहे हैं या कहते हैं रो रो के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं या कहीं रेडी लगा रहे होते हैं। कारण क्या है? सरकार की बेरुखी। सरकार को एक बात समझना चाहिए कि ये आधुनिक युग है, यहाँ पर SC ST कोटा का कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर बच्चों की मान्यता होना चाहिए, बच्चों की टैलेंट की मान्यता होना चाहिए। मैं एक आपको सच्चाई बता रहा हूँ, किसी बच्चों को अगर मान लीजिए वो जनरल कैटेगरी का है, वो पढ़ने में ठीक ठाक है, अच्छा है और कुछ अच्छा कोर्स करना चाहिए, मान लीजिए मेडिकल ही करना चाहता है, तो उसको कभी एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा है और ना ही कोई कोटा है उसके पास। वो जनरल कैटेगरी का है, वो दिन रात का मेहनत करके अच्छा डॉक्टर बन सकता था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उन बच्चों को पोस्ट मिल गया जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो एक बार एडमिशन करा लेंगे तो क्या पास नहीं होंगे? आप सभी कॉलेज के निरीक्षण कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए, बच्चे लगे रहते हैं। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में, 3 साल, 4 साल, 10 साल में तो होगा ही होगा। कंपार्टमेंट आ जाती है, लोग पेपर देते रहते हैं, उधर लोगों को मारते रहते हैं दवाई दे दे के। और ये सच्चाई है, ये आज की हकीकत है। और ये कहीं ना कहीं इन सब जो आरक्षण जो दी जा रही है ना, उसका सबसे बड़ा परिणाम है। आज हमें पता है कि आज सभी माता पिता बहुत समझदार हो गए हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब बच्चों को अपना अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो SC ST कोटा, ये कोटाओं की जो बातें दी जा रही हो गलत है। महिलाएं भी आज सशक्त हो चुकी है। हम महिलाओं को कोटा देके क्या दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती है, लाचार होती है, उनके पास कोई क्षमता नहीं होता, इसलिए हम उनको कोटा में डाल दिए। महिलाएं खुद सशक्त हैं, वो खुद काम करना जानती है, खुद ही मेहनत करना जानती है और पढ़ने में सबसे अव्वल है। उनको इसे कोटा की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आगे देखें तो इसके तहत औसतन वेतन जो था 2006 से 2007 में 65 रुपये से बढ़ाकर 2013-14 में 132 रुपया हो गया। यानी देखा जाए तो इसके तहत जो है औसत वेतन जो थी पहले 2006 से 7 में 65% ही था, जो बढ़कर 2013-14 में 132 रुपया हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। और इस योजना से 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। कहते हैं ये योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें सरकार की बहुत वाहवाही हुई, क्योंकि इसमें 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं मार्च 2018 में राज्य भर में अकुशल मैनुअल श्रमिक के लिए मजदूर दर के फिर से संशोधित किया गया। तो देखा जाए तो भारत में संशोधन होने की सिलसिला कभी कमती नहीं है, हमेशा होती रहती है संशोधन। लेकिन ये संशोधन सिर्फ किताबी बातें होती है, ज़मीनी हकीकत यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्च 2018 में राज्य भर में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूर दर को फिर से संशोधित किया गया और बढ़ाया भी गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मजदूर दरों की सीमा 281 रुपया प्रतिदिन और हरियाणा में श्रमिकों के लिए रखी गई। यानी देखा जाए तो हरियाणा के श्रमिकों के लिए 281 रुपये प्रतिदिन वेतन रखी गई। वहीं देखा जाए तो बिहार और झारखंड में श्रमिकों के लिए 168 रुपया प्रतिदिन रखा गया। कहते हैं ये आंकड़े इतने छोटे हैं कि एक अलग सा ही हमें एहसास होती है, क्योंकि 281 रुपया और 168 रुपया, कहते हैं ये तो आज स्कूल जाने वाले बच्चों के जेब खर्च से भी कम है। तो सरकार आज इन आंकड़ों से जो है पूरा विश्व को जीतना चाहती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि पहले अपने घर को देखो, फिर दूसरे घर में झांको। भारत को पहले इन सब बातों से अपने आप को ऊपर उठाना है। दिखावा जीवन करने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। और एक कहावत तो आपको पता ही होगा कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। चादर से अगर बाहर पैर करोगे
तो ये आपके लिए सही भी नहीं रहता है। लेकिन शायद ये बात हमारे देश की सरकार को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग स्वयं ही समझदार हैं। Next question arrive here. That's important. What is the global poverty scenario here? That's important here. What is a global poverty scenario? You know that thought there has been to be and substantial reductions in the global poverty. It is a market with a great regional difference here. You know that. That's important. Reduction in the global poverty. It is a market with a great regional difference here. First of all here, poverty decline substantially in China and Southeast Asian colonies as a result of rapidly economic growth and massive investment in human resource development. That's important. Poverty decline is stimulated here China and South Asian colonies. That's important. The massive investment in human resource development. The next year, in the South Asia countries, that decline has not been rapidly. That's important. The South Asia's country, the decline has not been rapidly. And that decline is a percentage of poor. The number of poor has declined from to the 417 million in 1981 to 428 million in 2001. That's important here. The number of poor has been declined from 475 million to the 1981, but there is a 428 million in 2001. That's important here. Global poverty scenario here. In sub-Saharan Africa, poverty is a fact. Rose from 41% in 1981 and 46% is 2001. That is important कि सब Saharan African is poverty is a fact rose of 41% in here 1981, but is increasing 46% in 2000 here. And in Latin America, the ratio of poverty is remain the same. Latin America, the ratio of poverty here remains the same, and the poverty has also resurfaced in some of the former or socialist countries like Russia. That's important. हमारे समक्ष जो चैप्टर आया है निर्धनता की चुनौती क्लास 9th CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस का जो हमारा ये बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और है ये इकोनॉमिक्स का। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि वैश्विक गरीबी परिदृश्यता क्या है। देखिए हमने भारत के बारे में पूरी एनालाइज किया, हर एक क्वेश्चन में समझने की कोशिश किया, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हम गरीबी पे बात कर रहे हैं तो विश्व स्तर पर गरीबी की क्या हालत है और क्या दशा है ये जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा। इससे अपने देश और दूसरे देशों के साथ तुलना हो जाएगा, तो जो काफ़ी महत्व रखेगा इस क्वेश्चन का कि वैश्विक गरीबी परिदृश्यता क्या है। हालांकि वैश्विक गरीबी में काफ़ी कमी आई है, लेकिन इसमें बड़े क्षेत्रीय अंतर भी देखने को हमें मिला है। कहते हैं वैश्विक गरीबी में काफ़ी कमी आई है, लेकिन ये नहीं कि कमी बहुत काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इसमें बड़े क्षेत्रीय अंतर भी हमें साफ देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहली बात तो आती है कि तेज़ी से आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में बड़े पैमानों पर निवेश के परिणाम स्वरूप चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया उपनिवेशों में गरीबी में काफ़ी गिरावट आई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि देखा जाए तो तेज़ी से आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास के बड़े पैमानों के निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया उपनिवेशों में गरीबी में काफ़ी गिरावट आया है और ये वैश्विक गरीबी परिदृश्यता है यहाँ पर। उसके पश्चात देखिए तो दक्षिण एशियाई देशों में गिरावट उतनी तेज़ी नहीं रही है। देखा जाए तो दक्षिण एशिया देशों में गिरावट जो है इतनी तेज़ी से नहीं हुई है। गरीबी रेखा, गरीबी के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद
गरीबों की संख्या यहाँ देखा जाए तो 1981 में 475 मिलियन से घटकर यहाँ पर देखा जाए तो 2001 में 428 मिलियन हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो गरीबी रेखा में दक्षिण एशिया में गिरावट जरूर आई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है कि वैश्विक स्तर पर जो गरीबी में गिरावट जरूर आई है। उसके पश्चात देखें तो उप सहारा अफ्रीका में गरीबी वास्तवता में देखा जाए तो 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई। यानी सभी देशों में गरीबी की रेखा घटी है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका में आज भी गरीबी रेखा जो है बरकरार है और देखा जाए तो यहाँ गरीबी की रेखा जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये काफ़ी संकट का समय हो सकता है उप सहारा अफ्रीका के लिए, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए 1981 में 41% बढ़कर 2001 में 40% हो गई। तो ये वैश्विक स्तर पर बहुत ही चिंता का विषय बन सकता है। आगे यदि हम बात करें तो देखा जाए तो लैटिन अमेरिका में गरीबी का अनुपात वही रहा। यानी देखा जाए तो लैटिन अमेरिका में गरीबी के अनुपात में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिला। लैटिन अमेरिका में गरीबी का अनुपात जैसा का तैसा ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ सकता है। देखा जाए तो रूस जैसे कुछ पूर्व और समाजवादी देशों में भी गरीबी फिर से उभर आई है। तो देखा जाए तो गरीबी आने वाला समय में और भी बढ़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो रूस, लैटिन अमेरिका जैसे देश सब जो है युद्ध पे बहुत ही अपना दिमाग फोकस कर रखे हैं। तो युद्ध जो है गरीबी के उस दलदल में इनको धकेलेगा जो इनका जो है उभरना कई दशकों तक बहुत ही मुश्किल साबित होगा। क्योंकि देखा जाए तो ये लोग जो है यही सब कारणों के कारण जो गरीबी रेखा से अभी उभर नहीं पाए हैं। भारत में गरीबी रेखा का सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ की राजनीतिक प्रणाली, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली में सिर्फ लोग जो है गरीबी का जो है अपने वोट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भारत से गरीबी जाना कहते हैं बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत से कभी गरीबी नहीं जाएगी जिस प्रकार भारत से कभी कोरोना नहीं जाएगी। And the last question arrive here, that's the most important here. How did the problem of poverty become the future of their urban sector? That's important here. How did the problem of poverty become the future of urban sector? Let's explain here. That's important. The futures of their urban sector here. Problem faced by the poverty in a urban sector. That's important here. You know that is important. The spread of irrigation and green revolution created many job opportunity in the agriculture sector, but the effect could be only a few state of India. That's important and problem here. A few state of India, but agriculture opportunity give a create a many job opportunity for the India, but few sector only. That's important. For there is a problem faced by the future on urban sector. The industry both in a public and private sector did provide some jobs, but this will not be proportional to be job shaker. You know that the industries both a public and private sector, and there is a provide some job for the important. And unable to find proper job in a city, many people start to working domestical servant etc. You know that is a find the proper job in a city, but many people is the struggle here and started to working domestical servant here. You know that with the regular small income, these people start to living in a slum on the outskirts of the city. That's important. Irregular small income, these peoples are start to living in a slum on the outskirts of the city. Thus, the problem of poverty, largely in rural phenomena, also become the future of the urban sector. You know that is true. There is the many problems faced by the future urban sector here, because a big city or many types of slum area here. Mumbai also there is the large
area of slum. That's important. The urban sector a meaning face of the here a future in a slum area. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्धनता एक चुनौती, क्लास 9वीं, यहाँ पर CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट आया है और हमारे समक्ष जो आखिरी क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा क्वेश्चन है कि गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्र की विशेषता कैसे बन गई है, इसका हमने व्याख्या करना है। यानी गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्र की विशेषता बन गई है। आपको मैं बता दूं कि भारत में जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर बड़े ही बड़े गरीबी में निवास करने वाले झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। देखा जाए तो इसको बड़े से बड़े मंत्री लोग भी सलूशन करने में कामयाब नहीं हुए हैं। बेशक सरकार की तरफ से बहुत से कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक कॉलोनी को ये तोड़ते हैं तो दूसरा कॉलोनी ऑटोमेटिक बन जाता है और जिसके कारण भारत कभी भी जो है गरीबी रेखा से नीचे उभर नहीं सकता है। और ये देखा जाए, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ कि मुंबई इतना विकसित शहर है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा गरीबी रेखा की कॉलोनी यहाँ पर दिख जाएगा, यानी स्लम एरिया मुंबई में सबसे बड़ा दिखेगा। तो ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है और देखा जाए तो गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्रों की मेन विशेषता है और इसका कारण कहीं ना कहीं मैं दोषी सरकार को ही मानता हूँ। कारण क्या होता है, सरकार जो है गाँव के क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ नहीं लगाती है और जो गांव में निवास करने वाले लोगों को जो है प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाता है, तो ये लोग जो है शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और शहरों में इतने अधिक किराया होने के कारण ये कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। ये बात तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत जो आंसर है वो साफ करता है इन सभी बातों को कि भारत में देखा जाए तो गरीबी रेखा के अंतर्गत जो स्लम एरिया बनाई जाती है, जो झुग्गी झोपड़ी बनाई जाती है, वो ख़त्म नहीं होगी। और देखा जाए यहाँ पर पॉइंटों के अंतर्गत तो सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसका असर भारत के कुछ ही राज्यों में देखने को मिला है। ये बात सत्य है कि सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति के विकास ने कृषि में बहुत ही बड़ा जो है अवसर पैदा किया है, लेकिन ये हर एक क्षेत्र में नहीं है, ये कुछ ही इक्का दुक्का क्षेत्र में है। और देखा जाए जहाँ पर हरित क्रांति ने अपनी चरम सीमा पहुँचाई है वहाँ पर अब देखा जाए तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी जो भी क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है अब वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिनके कारण जो है जोत का जो जगह है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो जनरल सी बात है, इन कारणों से जो है गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन जो है शहरी क्षेत्रों में बढ़ेगा और यही विशेषता शहरी क्षेत्रों का भी रहता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में कुछ नौकरियां प्रदान की गई है, लेकिन ये नौकरियां चाहने वाले के अनुपात में नहीं थी। यानी देखा जाए तो सरकार हर बार ये लोगों से वादा करती है कि हम रोजगार के बहुत से अवसर निकालेंगे, लेकिन देखा जाए तो ये सरकार की सिर्फ खोखली बातें ही रहती है। कहते हैं कुछ व्यक्तियों को रोजगार दे देते हैं, उसके बाद ये ठप हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार करने का साधन ही नहीं है, क्योंकि इनका नीतियां ही कहते हैं धड़ल्ले रह जाती है। इनकी नीतियां जो है आगे बढ़ने वालों में से नहीं होता है, क्योंकि अगर सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे तो जनरल सी बात है हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या घटेगी। लेकिन सरकार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे विश्वास करती है, विदेशों से कंपनियों को भारत में बुलाती है, इस पे विश्वास करती है और भारत के ज़मीनों को जो है विदेशियों के नाम कर देती है। तो यही जो नीति है जो है अंग्रेजों को भी यहाँ पर भारत में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया और आज भारत सरकार भी इसी तरह की नीतियों का अनुसरण कर रही है। तो आप समझ सकते हो फिर से जो होगा 250 सालों की गुलामी हमें इंतजार आगे कर रहा है, क्योंकि सब दशाएं हमें ये बात बताती है। क्योंकि जब तक हमारे देश में नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक कहते हैं खाली मन जो होता है शैतान का घर होता है। इसी कारण से हमारे देश में आए दिन दंगे फसाद
होते रहते हैं और ये बड़े बड़े मंत्री लोग जो है इन नौजवानों को बरगलाते रहते हैं और इनसे जो है भारत को में आग लगवाते रहते हैं, जो कभी भी सत्य नहीं है और सही नहीं है। शहरों में उचित नौकरियां न मिल पाने के कारण बहुत से लोग घरेलू नौकरी आदि काम करने लग गए हैं। अब जनरल सी बात है, शहरों में उचित नौकरियां नहीं मिलेंगे तो ये लोग जो है गलत रास्ते अपनाने लग जाते हैं या घरेलू जो है नौकर बन के अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं, जिनके कारण न जाने कितने तरह के अपराध सामने आते हैं। कहते हैं अनियमित छोटी आय के साथ ये लोग शहरों के बाहरी इलाकों में झुग्गी में रहने लग जाते हैं। अब देखिए शहरों में जो होता है कोई किराए पे रहना संभव नहीं होता इन लोगों के लिए और ये लोग गांवों से जो होते हैं शहरों में पलायन करते हैं, छोटे मोटे काम धंधा या दुकानों में काम करते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि किसी भी क्षेत्र में किराया पर रह ले, इसलिए झुग्गी झोपड़ी जो है शहर के आसपास बना के रोडों के किनारे अपना जीवन यापन करते रहते हैं और ये समस्या शायद ही भारत से कभी जाए, क्योंकि ये समस्या आम है, साधारण है। आप कोई भी शहर ले लो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर अगर झुग्गी झोपड़ी आपको ना दिखे ये संभव नहीं है। और इन सभी क्षेत्रों की जो है यही मेन विशेषता है कि इन क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी जो है हर समक्ष रहती है, क्योंकि ये लोग अनियमित छोटे आय के साथ अपने जीवन यापन करते हैं, इसलिए बाहरी इलाकों में झुग्गी झोपड़ियाँ में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार गरीबी की समस्या मुख्य एक ग्रामीण घटना और शहरी क्षेत्र की विशेषता बन गई है। तो दोस्तों ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो है गरीबी की समस्या शहरी क्षेत्र की विशेषता बनने का कारण कहीं ना कहीं ये सारी बातें ही हैं। कहते हैं अगर सरकार गाँव में जो है उद्योग लगा दे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोल दे, तो ये लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। गांव में सारी व्यवस्था हो जाएगी तो लोग अपने कृषि पे भी ध्यान देंगे। दूसरी बात है सरकार ने जो अर्बनाइजेशन की जो नीतियां अपनाई है वो बहुत ही बुरी और ख़तरनाक है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है कि जिसमें फसल उगाई जाती थी वो ज़मीनों में आज बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार किए जा रहे हैं और देखा जाए तो शहरों के निकट सारे ज़मीनों को बेच दिया गया है, जो आने वाला समय में भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। और देखा जाए जो क्षेत्र उपजाऊ है उनको वो बेच रहे हैं और वहाँ पर बड़े बड़े जो है फैक्ट्री लगा रहे हैं या तो वहाँ पर मकानें बनाई जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी और समस्या बनेगी भी तो क्यों नहीं बनेगी। ये लोग जो होते हैं गांव से शहरों में पलायन करते हैं, इनको तो किराए पर रहना संभव नहीं होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ज़मीन ले लिया जाए या कहीं ना कहीं किराए पर ले लिया जाए। तो मालिक लोग भी सोचते हैं, जो जिनके पास ज़मीन होता है वो सोचते हैं कि जब कृषि करने में हमें तो लाभ होती नहीं है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बना के जो है उनको किराया पर दे देती है। तो कई समस्याएं हैं जिनके कारण भारत में जो है इस तरह की समस्या देखने को आम हो गई है। बड़े बड़े शहरों के निकट जो है वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होना एक आज के समय में एक विशेषता बन गई है। सारे देश में जितने भी कहते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, मंत्री सब होते हैं, जितने भी सब इस बात को वादा करते हैं कि हम यहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे, यहाँ पर सुचारू रूप से जो है मकान बनाएंगे, लेकिन किसी की बात आज तक तो सत्य नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होने वाली है। जब तक भारत से गरीबी खत्म नहीं होगी इन समस्याओं का समाधान होना कभी भी संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको त्रिपाण सेंटर ने वादा किया था सिर्फ 12 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण रखी जाएगी। तो इसी जो है बातों पर यहाँ पर त्रिपाण सेंटर ने खरा उतरा है और इसको सिर्फ 12 क्वेश्चन को ही महत्वपूर्ण बनाया है, जो एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन बेशकली बदल दिया जाएगा लेकिन आंसर यही रहेगा। याद कीजिए, क्वेश्चन को भी समझिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। और एक और उद्देश्य जो आपको लेकर चलना है, त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको समय रहते मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आपको आने वाला समय में हर एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।